Namaste and welcome back to lecture number 12 of Standard 9 Chemistry. I hope all of you are fine and doing well in study. Now, see, in last class we have studied about the difference between solid, liquid and gas. हमने आपको समझाया, okay? And in this lecture we will study about the very important term, that is evaporation. Is it clear? So let's start with our topic, that is evaporation. Evaporation. Write down first. First we will explain about evaporation, what is evaporation and what are the factors which affect the evaporation. And in the next lecture we will study about evaporation cause cooling, okay? And we will do some related question to evaporation, which is very important for us and our syllabus. Is it clear? Okay, so let's start with topic, what is evaporation. See, देखिए अच्छे से अब समझिए, ये हम कोई लिक्विड लिए. Is it clear? In this container, this is container, and here we take some liquids. Is it clear? Like this. And you know very well that any matter is made up of particles. Is it clear? Any matter is made up of particles. See? So that means these are the particles from which matter are made up of. Okay? इससे मिलके बना है. समझ रहे बात को? ये पार्टिकल्स आपको दिए. अब लिक्विड्स को इस कंटेनर में हम रख दिए और रखने के बाद आफ्टर सम टाइम देख क्या रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, आप अच्छे से इसको समझेंगे. ये जो पार्टिकल्स हैं, आप देख रहे हैं इसको, ये जो पार्टिकल्स हैं ये कुछ एनर्जी गेन करते हैं. समझ रहे? दिस पार्टिकल्स गेन सम एनर्जी एंड आफ्टर गेनिंग एनर्जी इट फॉर्म वेपर. Is it clear? It form what? Vapor. This energy is known as latent heat of vaporization. Are you getting my point? These particles of liquid from the surface. This is on surface of the liquid. Is it clear? This is surface. These particles absorb energy or gain energy. Is it clear? And after gaining energy, it change into vapor. This is liquid. That means liquid. This is L. L means liquid. Is it clear? Or V means vapor. Write down first. L means liquid. V means vapor. This is the liquid particles change into vapor after gaining some energy. This energy is known as latent heat of vaporization. Is it clear? This energy is known as latent heat of vaporization. After gaining energy, these particles change into what? Vapor. That means liquid change into vapor. Liquid change into vapor. Is it clear? After gaining some energy is known as, this energy is known as latent heat of vaporization. Is it clear? Okay. Write down first. Draw it. Then I will explain later evaporation. Is it clear? Written? Okay. See. अब हम आपको बता रहे थे, ये जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के, जो आपने लिया था इस कंटेनर में या बीकर में या वेसल्स में, अब ये लिक्विड का जो पार्टिकल्स हैं, जो आप यहां देख रहे हैं पार्टिकल्स, दीज आर द पार्टिकल्स लाइक दिस. इज इट क्लियर? अब ये पार्टिकल्स एनर्जी लिए, इनको एनर्जी दिया या एनर्जी अब्सॉर्ब किया सराउंडिंग से और चेंज हुए किस में? वेपर में. किस में चेंज हुए? वेपर में. अब ये वेपर लिक्विड से वेपर में चेंज होने में जो हिडन एनर्जी लगा, हमको तो नहीं, हमने तो नहीं दिया, जो हिडन एनर्जी लगा उसको बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अगर ये 100 डिग्री सी के अंदर हो
मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से अंदर के नीचे हो। बात समझ रहे हैं? जैसे ये हमने लिया, ये वाटर लिया था, क्लियर है? लिक्विड जो लिया था वो क्या था? वाटर। तो आप जानते हैं वाटर बॉयल्स करता है एट 100 डिग्री सी, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, इज इट क्लियर? तो अगर 100 डिग्री सी के नीचे लिक्विड चेंज हो रहा है, मतलब वाटर चेंज हो रहा है वेपर में, तब इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। आई बात समझ में? नहीं समझे? क्लियर है? फिर से समझिए कि लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, और अगर वो बॉइलिंग पॉइंट के बिलो होता है, नीचे बॉइलिंग पॉइंट से पहले, क्लियर है, तब उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्लियर हुआ? अब आप अच्छे से समझिए फिर से। ये जो देख रहे हैं, ये नीचे के पार्टिकल्स वेपर बन रहे हैं क्या, या सरफेस वाले पार्टिकल्स बन रहे हैं? सरफेस के बन रहे हैं। आप अच्छे से देख रहे होंगे कि ये पार्टिकल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब है इट इज अ सरफेस फेनोमेना। मतलब ये जो प्रोसेस होता है सरफेस पे होता है। लिक्विड के कहां पे होता है? सरफेस पे। आई बात समझ? दैट मीन्स इट इज अ सरफेस फेनोमेना। इट इज अ सरफेस फेनोमेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सरफेस पे होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। अगर इनसाइड होता तब इसको बोलते हैं बल्क प्रोसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज इट टेक प्लेस inside the body, then it is known as bulk process, but it take place on the surface of the liquid or substance, so it is known as surface phenomena. Is it clear? Okay, so note down, it is surface phenomena. Note point, it is surface phenomena. ये सरफेस फेनोमेना है, मतलब ये सरफेस पे ही होंगे। क्लियर है? दैट मीन्स इट टेक प्लेस ऑन द सरफेस, सो इट इज कॉल्ड सरफेस फेनोमेना। आई बात समझ में? अभी आपको सरफेस फेनोमेना का एक बेस्ट एग्जांपल समझाते हैं। अभी आप जान रहे हैं कि अपने कंट्री में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में गवर्नमेंट बोल रही है कि आप बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन के ही निकलेंगे। क्यों गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है? क्योंकि उनको पता है कि मास्क पे, क्लियर है, जो पार्टिकल्स, जो वायरस वगैरह होंगे वो मास्क के सरफेस पे रुक जाएंगे। कभी ऐसा सुने मास्क पहनने की वजह से अंदर आ गए? ऐसा नहीं है ना। अभी अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि अगर नहीं है तो आप टॉवेल, गमछा वो लगाएं। क्यों? क्योंकि गमछे के सरफेस पे वो जो वायरस है या इम्प्योरिटीज हैं या फिर डस्ट पार्टिकल हैं वो सरफेस पे रुक जाएंगे। क्लियर है? कभी सुने अंदर आएंगे? नहीं आएंगे। तो सरफेस पे रुक गए तो इसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। सो evaporation is also a surface phenomena, means it take place at the surface of the liquid. Is it clear? Okay, so it is called surface phenomena. Are you getting my point? Okay, note down. Then so write down the so we should know about the definition. What is the definition? The process in which liquid change into vapor. Are you getting my point? The process in which liquid change into vapor below its boiling point. Is it clear? Below its boiling point is known as evaporation. Is it clear? Below its boiling point is known as what? Evaporation. So write down definition. The process in which right now, the process in which liquid change into vapor below its boiling point is known as, is called evaporation. Is it clear? Note down fast. ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट कर लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। Latent heat of vaporization of water is equal to 2.26 into 10 to the power 6 जूल। ठीक है, इतना एनर्जी बाहर से देना पड़ता है, तब लिक्विड चेंज होता है वेपर में, इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा
वो उतना उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए। द लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेट इजिली एंड फास्टर। इज इट क्लियर? तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको इवेपोरेशन के इंक्रीजिंग मतलब किसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा आपको अरेंज करना है। इज इट क्लियर? ओके, सो नोट डाउन क्वेश्चन। केरोसिन, आपको बॉइलिंग पॉइंट, ये लिक्विड है केरोसिन, केरोसिन क्योंकि मिक्सचर है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका वेरी करेगा यहाँ से यहाँ तक। ये कंपाउंड है इसलिए इसका फिक्स है, ये मिक्सचर है इसलिए इसका इतना से इतना है, ये कंपाउंड है इसलिए इसका फिक्स है। मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा रेंज में होता है। क्लियर है? ये मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है इसलिए इसका रेंज दिया है 150 to 300 डिग्री से। ये कंपाउंड है इसलिए इसका मॉलिक्यूल्स इसलिए फिक्स है, मिक्सचर है इसलिए रेंज में है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स इसलिए इसका फिक्स है। अब आपको बताना है कि इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगा, आपको अरेंज करना है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज our next topic is factor affecting evaporation. Is it clear? So next topic, let's be start with our next topic, that is factor affecting evaporation. Is it clear? Okay, can I erase it? Next topic is factor affecting evaporation. कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे T S W N H। ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखना है। T का मतलब है टेम्परेचर, T मीन्स टेम्परेचर, S मीन्स सरफेस एरिया, ठीक है, W मीन्स विंड मतलब हवा का स्पीड, N का मतलब है नेचर ऑफ लिक्विड, N मीन्स नेचर ऑफ लिक्विड। ओके, और H मीन्स ह्यूमिडिटी। राइट डाउन फास्ट, H मीन्स ह्यूमिडिटी। रिटन, राइट डाउन फास्ट। अब आपको हम ट्रिक समझाते हैं कि ये पॉइंट को कैसे याद रखें। ठीक है, तो लिख देते हैं, देखिए दिस इज तारा, सितारा, तारा सितारा, वुमेन्स के लिए किसी नेशनल हीरो से कम नहीं। तारा सितारा वुमेन्स के लिए, देखिए इसका मतलब ए, तारा, सितारा मतलब एस, वुमेन्स मीन्स डब्लू, ये पूरा है यहाँ पर, नेशनल मतलब एन, और किसी हीरो, एच मतलब हीरो से कम। राइट डाउन फास्ट। तारा, तारा मीन्स टी, सितारा नेशनल, सॉरी वुमेन्स के लिए नेशनल से हीरो से कम है। रिटन, राइट डाउन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन। रिटन, ओके, सो ये अपना फैक्टर था। अब हम आपको एक एक्टिविटी से समझाते हैं। ठीक है, ये मान लिया अपने पास, ठीक है, अपने पास मान लो कोई कॉटन है, ये कॉटन आप ले लिए, ये सूखा हुआ है, अब इसको आप पानी से भिंगा लीजिए। ठीक है, वेट कर लीजिए, भींग गया। ठीक है, भिंगाने के बाद अब इसको हमको सुखाना है। क्लियर है?
हमको इसको सुखाना है, तो कैसे आप समझिए, इस सुखाना है तो इसको सनलाइट में रखें या फिर सनलाइट के बिना रखें, मतलब धूप में रखें या नहीं रखें धूप में। अगर धूप में रखेंगे तो आप भी जानते हैं कि बहुत जल्दी से सूख जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्लियर है, क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बहुत आसानी से सूख जाएगा, क्लियर है। मतलब ये है कि आप टेम्परेचर, इसका अपर एरो दे रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। मतलब ऐसा लिख दें, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ई का मतलब इवेपोरेशन, सही है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए सेकंड पॉइंट को फिर से समझते हैं। एस मीन्स सरफेस एरिया। ये देखिए, इसको भिंगा लिए, क्लियर है। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाए, ये बहुत जल्दी ड्राई। अब देखिए, दिस इज हैंकी या कॉटन, ये भींगा हुआ था। अब मान लो भींगा हुआ है, तो क्या हम ऐसे करके इसको ऐसे कर लें, फोल्ड कर लें, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड कर लें, ये आसानी से सूखेगा या जल्दी सूखेगा, या फिर इस फॉर्मेट में जल्दी सूखेगा। अब बताओ किस फॉर्मेट में जल्दी सूखेगा, इस फॉर्मेट में। मतलब सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बढ़ गया ना, और जब ये फोल्ड किए तो सरफेस एरिया कम हो गया। मीन्स आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, क्लियर है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। जब आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। मतलब इस फॉर्मेट में ले आए तो बहुत आसानी से सूख जाएगा, इसको फोल्ड करके रखेंगे तो ये बहुत मुश्किल से देर लगाएगा, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए मौसम बहुत, बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, और इसको आपको ड्राई करना है, तो ठीक है, तो बारिश में तो बाहर नहीं रख सकते, अंदर रखेंगे ही रखेंगे। तो अब कैसे रखें, हवा में रखें या बिना हवा के रखें, फैन ऑन करना पड़ेगा। तो फैन का स्पीड जितना बढ़ाएंगे या फैन ऑफ कर दें तब सूखेगा, नहीं सूखेगा। तो ये फैन का स्पीड मतलब विंड का स्पीड, हवा का स्पीड ज्यादा होगा तो ये आसानी से सूखेगा, क्लियर है। तो हम विंड W भी बढ़ाएंगे तब भी ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। W भी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, इसकी फिर इस पे समझाते हैं। ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन घटेगा, बस ये चीज को ध्यान रखना है। अब N है जो नेचर ऑफ लिक्विड, N अब कौन सा लिए हैं, क्लियर है, कि मान लो आप उसको ले लिए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कम है या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बहुत आसानी से इवेपोरेट होगा, क्लियर है। जैसे पिछला क्वेश्चन भी हमने दिया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वैसे लिक्विड को लिए हैं तो बहुत आसानी से इवेपोरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो इवेपोरेट बहुत मुश्किल से होगा या ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये नेचर ऑफ, दैट्स ऑल अबाउट इवेपोरेशन एंड फैक्टर इफेक्टिंग। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Okay, bye bye.